اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام چٹ چیٹ وتھ احسن کھوکر کے ایک نئے ایپیسوڈ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ سب دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج کے جو چٹ چیٹ کے ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اسٹوڈنٹ ہیں شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی جینیٹکس ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں، میرے بہت ہی پیارے دوست، بہت ہی پیارے بھائی ضیاء اللہ خان صاحب۔ السلام علیکم ضیاء بھائی۔ وعلیکم السلام احسن بھائی، کیسے السلام ہیں آپ؟ علیکم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت جی شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ ضیاء بھائی آپ کا بھی شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ جی جی آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی جی ضیاء آ بھائی رہی ہے آواز۔ ہاں جی، چلیں کنٹینیو کرتے ہیں ہم اپنے پروگرام کو۔ ضیاء بھائی سب سے پہلے تو ہماری آڈینس کو آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ نے کہاں سے اسٹڈی کی اور تعلیم کہاں تک کی، باقی مزید ہم آپ سے گفتگو کریں گے آگے، ابھی صرف آپ یہ بتائیں۔ ہیلو۔ جہاں تک پیدائش ہے، میری پیدائش اسی شہر نواب شاہ میں ہوئی۔ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم رینجرز پبلک اسکول نواب شاہ سے حاصل کی، سیکنڈ تک میں وہاں پڑھا۔ اس کے بعد تھرڈ سے لے کے مڈل تک میں نورسٹن کو اپنا جی ایم قریشی مڈل اسکول ہے وہاں تک مڈل کیا میں نے۔ اس کے بعد نائنتھ میٹرک جو میں نے کی وہ نورسٹن کالج سے کی، اور اس کے بعد فرسٹ ایئر انٹر میں نے گورنمنٹ ڈگری بوائز کالج سے کمپلیٹ کی، اور اب الحمدللہ میں یونیورسٹی شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ہوں فرسٹ ایئر کا، اور وہاں پر میں مالیکولر بایولوجی اینڈ جینیٹکس کر رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ڈبیٹنگ سے میرا تعلق رہا ہے۔ ڈبیٹنگ کریئر کا میں نے اپنا جو آغاز تھا وہ میں نے کیا 8 کلاس کے اندر میں نے کیا تھا، تو اس وقت میری جو پہلی اسپیچ تھی وہ 14 اگست کے موضوع کے اوپر تھی۔ وہاں سے میں نے ابتدا کی ڈبیٹنگ کی، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جو تھا کانفیڈنس گرو اپ ہوتا گیا، پھر اسکول لیول سے کالج لیول سے پھر آگے سم لیول سے، اور الحمدللہ لاسٹ ایئر میں ٹی وی ون کے اوپر بھی پرفارم کر کر آیا، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے اچھی خاصی پذیرائی دی۔ اور اس کے بعد میں بتاتا چلوں آپ کو، جو میرا تعلق ہے وہ انجمن طلباء اسلام سے بھی ہے۔ انجمن طلباء اسلام کا مقصد طلباء کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو افروزہ کرنا۔ انجمن طلباء اسلام سے جو میری وابستگی رہی وہ بچپن سے ہی رہی، اپنے دادا ابو کی وجہ سے، کہ وہ اپنے جب بھی اے ٹی آئی کا کوئی پروگرام وغیرہ ہوتا تھا تو وہ اس میں مجھے لے کر جاتے تھے اپنے ساتھ، تو اس وجہ سے لیکن پھر باقاعدہ طور پہ جو میں نے اے ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی وہ 2015 کے اندر میں نے کی تھی، اور اس وقت کی میری جو جو میری ذمہ داری تھی، پہلی ذمہ داری وہ تھی سٹی پریس سیکرٹری کی تھی، اور اب الحمدللہ جو میری موجودہ ذمہ داری ہے وہ ہے ڈسٹرکٹ نائب ناظم کی۔ جی یہ میرا چھوٹا سا تعارف تھا۔ چھوٹا سا ماشاء اللہ سے مختصر طویل تعارف اور بہت اچھا تعارف تھا۔ اچھا ضیاء بھائی، ایک مقرر کی ایون میں اگر اپنی بات کروں یا کسی بھی مقرر کی بات کروں، ایک کہانی اس کے پیچھے ہوتی ہے، کہانی جانیں گے لیکن وہ بعد میں جانیں گے۔ پہلے مجھے آپ اپنے فیوچر کے بارے میں بتائیں کہ آپ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں، اور کیا آپ کس ڈپارٹمنٹ میں آپ نے کیا سوچ کے لیا اگر آپ نے جینیٹکس لیا، کیونکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا تو آپ اگر مجھے بتائیں کہ آپ نے جینیٹکس کیوں لی اور آگے آپ کا کیا ارادہ ہے؟ جی جینیٹکس میں نے جو میرا 9th میٹرک اور فرسٹ انٹر تھا تو وہ میرا میڈیکل سے تھا، پری میڈیکل میں تھا، تو اس وجہ سے میں نے جینیٹکس کو میں نے جوائن کیا۔ اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے جو میرا شوق ہے ذاتی وہ میرا ہے ڈبیٹنگ کا، جو مطلب کہ پیشن ہوتا ہے ہر انسان کا اپنا، وہ ڈبیٹنگ کا ہے۔ اس کے علاوہ جو مجھے شوق ہے وہ پولیٹکس کا ہے۔ اگر ابھی یہ ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ ہمارے اوپر کووڈ-19 جو ابھی آ گیا ہے، اس کے علاوہ میرا ارادہ تھا کہ
अपना MA पॉलिटिक्स करने का। इंशाल्लाह आगे जाकर वक्त मिला तो अगर कोई ऐसे इसबाब बने तो इसी के साथ साथ मैं अपनी जो है MA पॉलिटिक्स की उसकी स्टडी को भी कंटिन्यू रखूँगा। जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी सोच मुझे बहुत अच्छी लगी। अक्सर लोग इधर मैं इस बात को आज क्लियर कर रहा हूँ। मैंने अक्सर लोगों की बातें सुनी और अक्सर लोगों से जब मैं बातें करता हूँ ना पॉलिटिक्स के हवाले से, तो एक बड़ी बात मुझे सुनने को मिलती है, यार पॉलिटिक्स एक ऐसा दलदल है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग ज्वाइन करें, हर किसी को नहीं कहता, जिसका शौक है वो ज्वाइन करे, लेकिन पॉलिटिक्स देखें को अपने मकसद जी, के लिए जी। ज्वाइन ना कीजिएगा। जहाँ भाई मैं बात कंप्लीट करूँ, मैं आपकी तरफ आता हूँ, आपका मकसद भी जानेंगे। मैं उन लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ कि दलदल जो कचरा होता है ना, उसको साफ करने के लिए आपको अपने आप को गंदा करना पड़ेगा, उस कचरे के ढेर के अंदर उतरना पड़ेगा। तो आप जरा ये बताएं कि आप क्या सोच के आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का सोचा। कि एक ये बहुत बड़ी बात है कि एक अगर हम सिर्फ जिम्मेदारी देखें, एक काउंसलर या एक MP की जिम्मेदारी देखें, तो एक छोटी जिम्मेदारी नहीं है। आपके ऊपर आपका पूरा इलाका, जिन्होंने आपको वोट दिए होते हैं, उनकी उम्मीदें, आपकी कौम की, आपके कौम के बच्चों की, आपके भाइयों की, आपकी बहनों की उम्मीदें आपके साथ होती हैं। तो आप ये बताएं कि आपने क्या सोच के ये कदम लिया कि मैं इस तरह का MA पॉलिटिक्स करूं, और इसके अंदर में इंटरेस्ट किस तरह आया कि आप क्या सोच के आपने ये इंटरेस्ट आपके अंदर पैदा हुआ। जी, तो आज हमारी ये बदकिस्मती कहते हैं कि हमने जो पॉलिटिक्स है, अगर देखा जाए तो पॉलिटिक्स तो 1400 साल पहले से होती हुई आ रही है, लेकिन तब के जो असूल थे, रवायत थे, वो अलहदा थे। और हमने मौजूदा दौर के अंदर पॉलिटिक्स को समझे गाली के तौर पर ले लिया है। लेकिन जब तक हमारी जो यूथ है वो आगे नहीं बढ़ेगी, वो अपना जो हमारी यूथ है, यूथ को चाहिए कि आगे आए। इसके अंदर ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमें नए हीरे मिलते हैं, और यही जो हमारे रोशन मुस्तकबिल के रोशन मेमार हैं, जो आगे असेंबलियों में जाके हमारे इस मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं। बिल्कुल। तो डिबेटिंग का जो शौक था, वो डिबेटिंग का जो पॉलिटिक्स का था, वो डिबेटिंग की वजह से इसका आया शौक। अबू के साथ में जाता था प्रोग्राम्स वगैरह में, और वहाँ से मुझे देख देख के स्पीच का और ये आगे पॉलिटिक्स का मुझे शौक आया। जी। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाब करे। अच्छा ज़िया भाई, आप एक स्टूडेंट हैं, हम लोग, मैं जो ये इंटरव्यू कर रहा हूँ इसका मकसद जो स्टूडेंट्स हैं उनके दिलों में अवेयरनेस पैदा करना, और उसके अलावा जो हमारे नौजवान तबका है जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, जो अपनी कौम के लिए, अपनी मिलत के लिए काम कर रहे हैं, उनको दुनिया को दिखाना है। अच्छा ज़िया भाई, आप एक स्टूडेंट हैं, आप भी ऑनलाइन क्लासेस आजकल तो हर यूनिवर्सिटी में चल रही है, तो ये ऑनलाइन क्लासेस का इनिशिएटिव जो हुकूमत की जानिब से लिया गया, इससे आप कैसा देखते हैं। जहाँ तक ऑनलाइन क्लासेस की बात है तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, और देखा जाए तो मेरे ख्याल में इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। लेकिन अगर कुछ मसाइल हमारे ज़रूर हैं, अगर उन मसाइल को हल कर दिया जाए तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई मसला है कि जो हमारे आने वाला वो टाइम है वो इंतहाई डिजिटल टाइम है। अगर हम अपने वक्त के साथ साथ इसको आगे नहीं बढ़ते तो फिर हमें बाद में बहुत सी मुश्किलात आएंगी। तो जहाँ लेकिन बस बदकिस्मती से हुकूमत ने जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं ये फ्लॉप हो चुकी हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो नाकिस इंटरनेट का मेयार है, और हमारा जो 60% हमारे इंटीरियर से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, जो विलेज साइड के हैं हमारे भाई वगैरह। तो वहाँ का फैसिलिटीज से भी वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम है। जी। अच्छा ज़िया अगर भाई, इन मसाइल को आपने, हल कर दिया जाए, जो उनकी ज़रूरियात हैं उनको पूरा कर दिया जाए, हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा उनके लिए कोई पैकेज वगैरह दिया जाए जिससे वो अपनी तालीमी अखराज, जो अपनी तालीमी जो उनका हर्ज है वो कम से कम हो। अच्छा ज़िया भाई, एक सवाल मैं आपको करना चाहूँगा। आपने अभी तक बताया कि हालांकि हमारे जो पास आवाज़ आ रही है, जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी। हमारे पास मसाइल की हेलो, वसाइल इतना है मगर मसाइल ज़्यादा हैं। तो आवाज़ का मुझे, कोई इशू आ रहा है? आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। मेरी आवाज़ नहीं आ रही, एक सेकेंड, सिर्फ एक सेकेंड वेट कीजिएगा। अब मेरी आवाज़ आ रही है आपको। वॉइस वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है। एक सेकेंड में चेक कर रहा हूँ।
एहसन भाई माजर हेलो जिया भाई, अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो जिया भाई, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। ये कमेंट में अगर कोई देख रहा है तो ये हमारे भाई ने बताया है, शयान आमिर ने। दोनों की आ रही है जिया भाई, आपकी तरफ आई थिंक हेडफोन्स का कोई इशू है। हम अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। जिया भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? एहसन भाई आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? कमेंट में हमें बताया हमारे दोस्त ने कि आ रही है आवाज। जी जी कंटिन्यू करें प्रोग्राम को। अच्छा जिया भाई, मुझे आप ये बताइएगा, आपने भी एक तो आपने ये मिसाल दी कि हमारे पास वसाइल बहुत कम है, इंटरनेट का मयार नहीं है। इसके अलावा और किन चीज़ों की कमी आपको ऑनलाइन क्लासेस के अंदर नजर आई? जी हेलो जी जी, मैंने कहा आपने भी कुछ मसाइल बताए थे ऑनलाइन क्लासेस के। मेरे ख्याल में जिया भाई डिस्कनेक्ट हो गए, हम दोबारा उनको कनेक्ट करते हैं। मेरे ख्याल से जिया भाई का हमारे से राब्ता मुनक़ता हुआ है, उनको दोबारा हम लाइन पर लेंगे। जी जी, शयान भाई, आमिर भाई, ये मुझे भी यही लग रहा है कि शायद इनका कोई इंटरनेट का इशू है। दोबारा हम अपने सेशन को यहीं से लाइव करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जिया भाई, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? वालेकुम सलाम जी, आ रही है आवाज, अब आ रही है। हाँ जी। अच्छा जिया भाई, मुझे आप ये बताइएगा, आपने कुछ इशू डिस्कस किए थे कि नेट के हवाले से, कि हमारे जो स्टूडेंट्स जो आउटसाइड से आते हैं, जो हमारे स्टूडेंट जो विलेजेस से आते हैं, उनके आपने इश्यूज बताए थे। इसके अलावा अगर मयार के हिसाब देखा जाए तो इस तरह का कोई और इशू आपको पेश आया? अगर म्यार की बात ये भी चल रही थी कि अभी सिटी के अंदर ये हाल है कि डिस्कनेक्ट हो रहा है, कि ये बार बार वाईफाई और डेटा का ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो सोचें जो हमारे इंटीरियर के इलाके, जो हमारे विलेज साइड के जो हमारे वहाँ भाई रहते हैं, उन्हें कितनी दुश्वारी इसमें होती होगी। और जी हुकूमत की बिल्कुल। जानिब से बाकी इन्होंने मार्केट्स वगैरह और लोकल ट्रांसपोर्ट को अगर उन्होंने इजाज़त दे दी है, तो हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को भी वो ये इजाज़त दें कि वो एसओपीज को फॉलो करके यूनिवर्सिटीज़ में आए। जहाँ तक छोटे बच्चों की बात है, उनकी तो समझ में आती है, लेकिन जो सेकंड थर्ड और यहाँ से लेके हमारे जो यूनिवर्सिटी लेवल तक हैं हमारे स्टूडेंट, उनको इजाज़त देनी चाहिए। वो एक बाशऊर तबका है हमारे मुल्क का। अगर आपने उन्हें इजाज़त दी है एसओपीज के तहत, अगर वो फॉलो कर सकते हैं, तो इस मुल्क का नौजवान क्यों नहीं फॉलो कर सकता। तो बिल्कुल। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो ऑनलाइन क्लासेस का तो एक मसला वो अलग है, आप इसको एसओपीज के तहत क्लासेस का आगाज़ करें, और ताकि हमारी तालीम का हर्ज है वो कम से कम हो। जी जी। अच्छा जिया भाई, आप एक स्टूडेंट हैं, और एक तालिब इल्म जो होता है वो अपने मुल्क का, अपने कौम का सरमाया और मेमार होता है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको ये टॉपिक चेंज करूँगा क्योंकि आप डिबेटर भी हैं, तो आपको इस बारे में काफ़ी नॉलेज होगी।
मुझे आप बताइएगा कि पाकिस्तान को डिजिटलाइज होने की ज़रूरत क्यों है, और क्या इस डिजिटलाइज होने की ज़रूरत क्यों, पहले इस पे करते हैं, फिर मज़ीद आगे हम बात करते हैं। जी आप कैसे भाई, बहुत अच्छा सवाल है कि डिजिटलाइज होने की ज़रूरत, पाकिस्तान डिजिटलाइज ही है, लेकिन हमें इसके अंदर इम्प्रूवमेंट की, मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर हम आज डिजिटलाइज होते तो जो हमारे मसाइल हैं वो इतने ज़्यादा ना होते। आपने बात की पाकिस्तान के डिजिटलाइज होने की, तो हम जो अभी बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन के ज़रिए, ये डिजिटलाइज है पाकिस्तान। और जो हम आजकल हमारे ऑनलाइन जो बिल होते हैं वो भी, उसकी पेमेंट भी हम कर देते हैं। इसके अलावा जो ट्रांजैक्शंस हैं मोबाइल की, जो हम दूसरे शहरों में पहले महीनों लगते थे, मतलब कि, और अब वो आप चंद सेकंड के अंदर भेज सकते हैं। तो पाकिस्तान किसी हद तक तो ये डिजिटलाइज हो चुका है, लेकिन इसको मजीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बिल्कुल। ज़िया भाई, मैं आपकी बात यहाँ पे काटूँगा। मेरे जो कहने का मकसद भी वो यही है कि अगर हमारे पास यहाँ पे करप्शन सिस्टम का एक बड़ा मेन मरकज़ जो है, वो मरकज़ है, वो ये है कि आपको अगर ये काम करना है तो आप मुझे पैसे दें, मैं आपको करा के दूँगा। ये बिल्कुल। एक बहुत बड़ा मसला है। और अगर लिटरली अगर हमारा पाकिस्तान डिजिटलाइज़ हो जाए, हमारे हर एक नौजवान, हमारे एक बूढ़े बिल्कुल। बच्चे को पता होगा ना, तो ये करप्शन सिस्टम भी काफ़ी हद तक खत्म होगा। अच्छा, डिजिटलाइज़ होने के किसी कंट्री को फ़वाइद क्या-क्या होंगे, वो ज़रा बताइएगा? सबसे पहले मैं मिसाल आपको जापान की देता चलूँ। जब जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर जब एटमी हमले हुए, तो उसके बाद उनको 100-200 साल पीछे चले जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने अपने अपने मुल्क को डिजिटलाइज़ किया, और उसके बाद वो इतनी आगे बढ़े और इस तरीके से तरक्की की। और अगर आप देखा जाए तो अगर हम आज जो भी चीज़ परचेज़ करते हैं, वो अगर चाइना की होती है तो हम बिला झिझक उसको खरीद लेते हैं। उसका सबसे बड़ी वजह उसका मयार है, और उसने जो स्ट्रगल की, जो उसने अपने आप को डिजिटलाइज किया और दुनिया में अपने आप को मनवाया, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर आप ज़िया डिजिटलाइज भाई ज़िया भाई ज़िया और भाई, 1 मिनट आपको काट रहा हूँ, 1 मिनट सिर्फ़। हमारे यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं शयान आमिर, कह रहे हैं कि आई हैव वन क्वेश्चन अबाउट ऑनलाइन क्लासेस। जी शयान भाई, आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन कर लें, और हम दोनों में से अगर जिसको भी जवाब आएगा, कोशिश करेंगे हम आपके जवाब को ज़रूर दें। आप क्वेश्चन हमें कमेंट में लिख के दे दें। ज़िया भाई, आप कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज़। जी अच्छा, पहली मिसाल मैंने दी जापान की, दूसरी मिसाल मैं आपको देता चलूँ चाइना की। जब चाइना कोविड-19 जब आया, तो जिसने पूरी दुनिया को एक बुरे तरीके से मुतासिर किया, लेकिन चाइना ने 10 दिन के अंदर अस्पताल बनाकर दुनिया को ये दिखा दिया कि हम इस दुनिया से बहुत आगे हैं। और ये सबसे बड़ी इसकी वजह यही है कि चाइना और अमेरिका और इसके अलावा यूरोप, जो हमारे कंट्रीज़ हैं, जापान वगैरह, तो डिजिटलाइज होने का फ़ायदा ये है कि या अभी आप इसकी मिसाल देख सकते हैं। आई थिंक ज़िया भाई का फिर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ज़िया भाई हमारे साथ दोबारा, हम उनको लाइन पे लेते हैं। अब हम, मेरे जो दो दोस्त, हमारे भाई हमारी ये लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, यूट्यूब पे देखेंगे, क्योंकि कुछ देर बाद इंशाल्लाह 12 साढ़े 12 बजे के बाद ये यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगी। डेली 12 साढ़े 12 के वक्त एक इंटरव्यू यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाता है, फेसबुक पे भी लाइव डेली बेसिस पे मैं आता हूँ। अगर आप में से कोई लाइव आकर मुझसे बातचीत करना चाहता है, तो मेरा ईमेल और मेरा मोबाइल नंबर ऊपर टॉप इस डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दिख रहा होगा, आप उससे मुझे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको एक बैनर के थ्रू मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। किसी भी टॉपिक पे अगर आप बात करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप सोशल इश्यूज पे बात की जाए, किसी भी इशू पे अगर आप बात करना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता करें, हम आपको आपको लाइव लेंगे हमारे साथ सेशन के अंदर। और उसके अलावा मजीद अगर किसी का कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट्स के अंदर कर सकते हैं। और अगर जो हमारी लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी लाइव स्ट्रीम को शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लाइव स्ट्रीम से कनेक्ट हो सकें। और हो सकता है कि कोई भी एक शख्स इस लाइव स्ट्रीम से उसको बहुत फ़ायदा हो, आप लोगों को फ़ायदा हो। ज़िया भाई दोबारा कनेक्ट होते हैं। जी ज़िया भाई, ज़िया भाई आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। मेरे ख्याल में तकनीकी वजूहात की वजह से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ।
آپ بات کیجیے گا, پھر ہم کوشچن بھی لیں گے آڈینس میں سے, ہمارے پاس کوشچن بھی آ رہے ہیں. اور ہم آج مثال دیتے ہیں چائنا, جاپان اور اس کے علاوہ امریکہ کی. تو اگر ہم آج اتنے ڈیجیٹلائز ہوتے تو ہمیں ان کی مثال دینی نہ پڑتی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان ممالک سے کچھ سیکھیں. اور سب سے بڑی وجہ ہے, جب آپ کا ملک ڈیجیٹلائز ہوگا تو آپ کے جو ملک کے اندر بے روزگاری ہے وہ ختم ہو جائے گی. ابھی دیکھا جائے تو جو ہمارے سوسائٹی کے معاشرے میں اس کی بڑھتی ہوئی تعداد ہے, اگر ہم آج ڈیجیٹلائز ہوتے, ہمارے اندر اپنی اسکلز ہوتی, تو ہمیں کوئی بھی ہمیں آن لائن ارننگ کے اگر طریقے آتے تو ہم بے روزگار گھر پر نہ بیٹھے رہتے. اور جی اچھا ضیاء بھائی, ہمارے پاس یہاں پہ کوشچن بھی آیا ہے, ہم اس کو کوشچن کرتے بھی ہیں اور ڈسکس بھی کرتے ہیں اس کے اوپر. ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں شایان عامر, انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ کے پاس ڈیوائس نہیں ہے تو کلاس کیسے اٹینڈ کرے گا. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے. میرا ایک سوال یہ ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ ایک نارمل عام آدمی کا بچہ ہے, کسان کا بچہ ہے, کوئی ڈیلی دیہڑی دار طبقے کا بچہ ہے جو دن کا صرف 500 سے 1000 روپے کماتا ہے, اور اس کے اندر صرف وہ گھر کا رینٹ دے, وہ بجلی کا بل بھرے, وہ گیس کا بل بھرے, وہ بچوں کی ٹیوشن کی فیس دے, وہ اسکول کی فیس بھرے, وہ کالجز کی فیس بھرے, وہ یونیورسٹیز کی فیس بھرے, وہ آدمی کیا کرے؟ وہ نہیں افورڈ کر سکتا ٹچ موبائل. اس نے پتہ نہیں رابطہ کنیکٹ کرنے کے لیے ایک کی پیڈ موبائل اس نے پتہ نہیں کیسے رکھا ہوا ہوگا. لیپ ٹاپ اور ڈیسک ٹاپ سسٹم کی تو بات دور کی ہے. تو ایسے اسٹوڈنٹ کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے ضیاء بھائی؟ آپ کی نظر میں کیا ایسا اقدام کیا جا سکتا ہے ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ لیکن آپ جواب دینے سے پہلے ایک سوال اور بھی شایان بھائی نے کیا ہے. شایان بھائی, آپ کا جو دوسرا سوال ہے وہ کلیئر نہیں ہے یہاں پہ, آپ ذرا وہ سوال دوبارہ کیجیے گا. جی, جو آپ نے پہلا سوال کیا وہ بڑا اچھا سوال کیا, اور اس کا میں نے جو جواب تھا وہ میں نے پہلے اسٹارٹ میں دیا بھی تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ جو اسٹوڈنٹس اس فیسلٹیز کو اویل نہیں کر سکتے ان کو کوئی ریلیف دیا جائے, ان کے لیے کوئی پیکیج دیا جائے, تاکہ وہ اس کو مطلب کہ اس کے جو ہمارا جو یہ نقصان ہے جو ڈیوائس والا ہے کہ انٹرنیٹ کا معیار, گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ ایسی کوئی سہولیات دے جس سے اسٹوڈنٹ کو کوئی پریشانی نہ ہو. ہیلو جی ضیاء بھائی, بالکل یہ مسئلے ہمارے ساتھ بھی ہیں, اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی ہیں. اگر ابھی ہم دیکھا جائے تو ہماری لائیو اسٹریم کتنی بار لیک ہو رہی ہے, ہم سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں سٹی کے اندر, ایسے وائی فائی اویلیبل نہیں ہے ہمارے سٹی کے سینٹر کے اندر بیٹھ کے, ہمارے ساتھ یہ حال ہو رہا ہے. تو سوچیں اگر جو ناردرن سائڈ یا جو بھی تھر پارکر سائڈ پہ جو اسٹوڈنٹس رہتے ہیں, اور موسٹ آف دا ہمارے اسٹوڈنٹس جو انٹیلیجنٹ, یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سٹی والے انٹیلیجنٹ نہیں, سٹی والے بھی انٹیلیجنٹ ہیں, وہ بہت انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اور اس میں ایک اور مسئلہ بڑا کہ ایک لڑکا تو باہر جا کے اگر آن لائن کلاس کو لینی ہے تو وہ باہر جا کر کسی بھی ہائٹ والی جگہ پہ جا کر وہ آن لائن کلاس اٹینڈ کر سکتا ہے. لیکن ہمارے پاس فیمیل اسٹوڈنٹس بھی پڑھتی ہیں, ہمارے پاس فیمیل اسٹوڈنٹس بھی ہیں, وہ کیسے گھر سے باہر جائیں گی؟ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے. ہم اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں, لیکن ضیاء بھائی اس سے پہلے مجھے جی آپ بات کنٹینیو کیجیے. جی, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ یہ آن لائن کلاسز کا جو چکر ہے اس کو آپ چھوڑیں. یہ ہم نے امریکہ اور یہ جو باہر کے ممالک ہیں ہم نے ان کو دیکھ کے یہ کر تو لیا ہے, لیکن ہمارے پاس ویسا انفراسٹرکچر ابھی تک موجود نہیں ہے. جب ہمارے پاس ویسا انفراسٹرکچر نہیں ہے تو یہ نظام ہمارے اوپر لادنا یا تھوپنا, یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ مناسب ہے. بالکل. اچھا, میں ادھر ایک بات ایڈ کرتا چلوں, میں اس میں کسی کی تعریف یا یہ نہیں کہہ رہا ہوں, یہ چائنا کی بات ہے. چائنا کر سکتا ہے, اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ چائنا کر سکتا ہے تو کوئی بھی ملک کر سکتا ہے, بالکل کر سکتا ہے, مشکل ہے, ناممکن نہیں ہے. چائنا کے اندر ایک بڑا اقدام کیا گیا کہ کرونا وائرس کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے. اب چائنا کے اندر جو نرسری اور پریپ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ایون کے اسکول جا رہے ہیں. آپ سوشل میڈیا کی سائٹس پہ دیکھیں, وائرل ہوئی ہوئی ہیں. انہوں نے کارٹون اسٹرکچر کے ٹائپ کے ایک ڈمیز بنا دی ہیں, وہاں پہ بچوں کو ٹیچر جو ہے نا وہ کلاسز کے اندر لانے سے پہلے بچوں کو سینیٹائز گیٹ سے گزارتی ہیں, ان کو ہاتھ سینیٹائز کرنے کے لیے بتا رہی کہ کس طرح. یہ میں بڑے بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ نرسری اور پریپ کے بچوں کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ سوشل میڈیا تو آپ بھی یوز کرتے ہیں, آپ کو نے بھی دیکھا ہوگا ضیاء بھائی کہ کس طرح وہ بچوں کو سکھا رہی ہیں, اور بچے سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھتے ہوئے جو نا وہ اپنا کام کر رہے ہیں, اپنی پڑھائی کنٹینیو کر رہے ہیں. ضیاء بھائی
हमारे प्रोग्राम का तो वक्त खत्म हुआ, लेकिन जाने से पहले प्रोग्राम खत्म करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा। जी 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 जी, कंटिन्यू करें आप। ये जो अभी आपने बात की, जो उन बच्चों की सबसे बड़ी जो वजह हमारे पास पाकिस्तान के अंदर, वो करियर काउंसलिंग की वजह है। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स की नहीं होती करियर काउंसलिंग। उसके अलावा बाहर ममालिक में अगर आप देखा जाए, जो आपने चाइना की मिसाल दी, तो वहाँ पर पेरेंट्स की भी बाकायदा तौर पर करियर काउंसलिंग होती है। तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क में भी कोई ऐसी पॉलिसीज बननी चाहिए ताकि हम भी दुनिया के शाना बशाना खड़ा हों और हम उनकी मिसाल न दें बल्कि दुनिया हमारी मिसाल दे। बिल्कुल ऐसी बात है। श्यान भाई का एक सवाल और है कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑनलाइन एग्जाम्स का ऐलान किया गया है, वो हम कैसे करेंगे? श्यान भाई, मैं आपको जानता हूँ, आप शायद आई थिंक स्कूल में या अभी कॉलेज में आ गए होंगे। मैं काफ़ी छोटे थे, मैं आपको तब से जानता हूँ। लेकिन वो जो हुकूमत का इनिशिएटिव था वो सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए था। और पंजाब में सुनने में आया है कि फेडरल गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि हम स्टूडेंट्स के, कॉलेज के स्टूडेंट के एग्जाम्स लेंगे। तो मजीद अगर आपको कोई सवाल करना हो तो आप मुझसे कर सकते हैं राब्ता, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी आप राब्ता कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। ज़िया भाई, मुझे आप ये बताइएगा, बल्कि मुझे ही नहीं, हमारी ऑडियंस को भी ये बताइएगा कि हमारे नौजवानों को पाकिस्तान को डिजिटलाइज करने के लिए मजीद किन चीज़ों पर वर्क करना चाहिए, और हमारे नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? हमारे नौजवानों को यही पैगाम है कि वो अभी इन जो फ़िरका परस्ती है, सूबाइयत, कौमियत और लसानियत, इन चीज़ों से निकल कर तू सिंधी, तू महाजिर, तू पठान, यहाँ से निकल कर आगे का सोचना चाहिए। जब हम इससे बढ़कर आगे का सोचेंगे, जो हमारी सोच है वो डेवलप होगी और इससे जो फ़ायदा है वो ज़रूर पाकिस्तान को होगा। तो हमें इन चक्रों को छोड़ के आगे आना चाहिए। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए हमें इन चीज़ों को अभी आप फ़िलहाल छोड़ दें। हमें आज देखा जाए तो एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है, हमारे हाथों में लाल, नीले, पीले झंडे पकड़ा दिए गए हैं। तो ये इशारा है हमें ज़हनी गुलाम बनाने की तरफ। जी। हमारे प्रोग्राम का तो वक्त खत्म हुआ। नाज़रीन, आप सबका शुक्रिया। ज़िया भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम एक शेर से करना चाहूँगा। आज मुझे एक शेर एक दोस्त ने व्हाट्सएप किया था, तो मैं ज़रूर वो शेर पढ़ना चाहूँगा कि मुफलिस जो अगर तन की कबाब बेच रहा है, मुफलिस जो अगर तन की कबाब बेच रहा है, वाइज भी तो मिंबर पे दुआ बेच रहा है, और दोनों को है दरपेश सवाल अपने शिकम का। या भाई कह रहे हैं, दोनों को है दरपेश सवाल अपने शिकम का, एक अपनी खुदी एक खुदा बेच रहा है, एक अपनी खुदी एक खुदा बेच रहा है। आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ज़िया भाई, अगेन आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। थैंक यू सो मच। आपका भी